راجہ نواز رائے ونڈ پہنچ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد اسٹیشن والی مسجد کے باہر ایک اخبار خرید کر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے کہا تھا کہ وہیں ملاقات ہوگی، اگرچہ دونوں کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے لیکن وہ کوڈ ورڈز کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ وہاں صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے نورانی چہروں والے مسلمان ہر سو نظر آ رہے تھے۔ تبلیغی اجتماع میں شامل ہونے والے بزرگ بھی تھے اور جوان بھی۔ وہاں جس طرح ایمان افروز اجتماع ہوا کرتا ہے، اگر یہ سلسلہ مزید ٹھوس منصوبوں کے ساتھ جاری رہے گا تو ساری دنیا میں پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر رائے ونڈ کو تبلیغ دین اسلام کا سب سے بڑا مرکز تسلیم کر لیا جائے گا۔ راجہ نے حمزہ کا انتظار کرنے اور وقت گزارنے کے لیے اخبار کو کھولا تو پہلے صفحے پر اپنی اور ٹینا کی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ ان تصاویر کے ساتھ یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ کراچی میں کھوکھرا پارک کے ایک مکان کو بم کے دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ ہونے والے مکان کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھی۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ راجہ نواز ایک مفرور ملزم تھا۔ پہلے اس نے ایک MNA کی بیٹی نازا کو اغوا کیا، پھر اسپتال میں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بڑے زبردست مقابلے کے بعد اسے گرفتار کیا تھا، لیکن اس کا ایک ساتھی دہشت گرد امیر حمزہ تھانے پر منظم حملہ کر کے اسے چھڑا لے گیا تھا۔ راجہ اور حمزہ کے خلاف بڑی مہارت سے کہانیاں بنائی گئی تھیں۔ لکھا گیا تھا کہ راجہ نے نازا کو اور حمزہ نے انیلا بانو کو اغوا کیا تھا اور ملک کے معزز سیاستدان نیک بخت سے انیلا کا سکینڈل بنوایا تھا۔ نیک بخت کو بدنام کرنے کی حد الامکان کوششیں کی تھیں، لیکن ایسے ٹھوس ثبوت اور گواہ مل گئے جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ حمزہ انیلا کو لندن لے گیا تھا۔ وہاں کچھ روز عیش کرنے کے بعد اسے ہلاک کر کے پاکستان واپس آ گیا۔ وہ دونوں یعنی راجہ اور حمزہ کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں اور وہ دونوں جنسی جنونی ہیں۔ انہوں نے نازا اور انیلا کو ٹھکانے لگانے کے بعد 3 دن پہلے ایک کونسل خانے کی لیڈی سیکرٹری ٹینا کو اغوا کیا تھا اور اسے کھوکھرا پارک کے ایک مکان میں لے گئے تھے۔ لیکن ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہونے لگا کہ پہلے کون ٹینا کے ساتھ وقت گزارے گا۔ وہ دونوں نشے میں تھے۔ اس جھگڑے نے رفتہ رفتہ خون خرابے کی صورت اختیار کر لی۔ ایسے وقت حمزہ نے چالاکی دکھائی، جبکہ راجہ نواز جھگڑے کے دوران میں ایک کمرے میں گیا تو اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک زبردست قوت کا ٹائم بم لگایا اور ٹینا کو زبردستی گن پوائنٹ پر اپنی کار میں لے جانے لگا۔ وہ ٹائم بم اپنے مقررہ وقت پر بلاسٹ ہو گیا۔ راجہ کے جسم کے ایسے چیتھڑے ہوئے کہ اسے دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی علاقے کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ حمزہ جس راستے سے ٹینا کو جبرن لے جا رہا تھا اس راستے سے پولیس موبائل آ رہی تھی۔ حمزہ گاڑی روک کر ٹینا کو جبرن کھینچ کر لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ شور مچانے لگی۔ اسے مجبور ہو کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی گاڑی چھوڑ کر جنگل کے ناہموار راستوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے اب تک اسے تلاش کر رہے ہیں۔ سیاسی کمروں سے اپنے چہیتے سیاستدانوں اور ان کے مخالفین کی جو تصویریں اتاری جاتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں جو اخبار میں شائع کی گئی تھی۔ ایسی ہی سیاسی فلم سے کالم لکھے جاتے ہیں جنہیں راجہ زندہ رہ کر پڑھ رہا تھا، مگر اخبار کے مطابق وہ مر چکا تھا۔ اخبار میں ٹینا کی تصویر کے ساتھ اس کا بھی بیان شائع کیا گیا تھا۔ ٹینا نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ اسے راجہ اور حمزہ نے مل کر اغوا کیا تھا، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے کے باعث وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گئی۔ راجہ اخبار ایک طرف رکھ کر سوچنے لگا، خوش قسمت ٹینا نہیں میں ہوں۔ وہ خفیہ ہاتھ کی پلاننگ میں شامل تھی، مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں سے میں فرار نہ ہو سکوں۔ اس دوسرے کمرے میں میری جگہ ایک جانباز تھا۔ ٹینا نے مجھے اس کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتے دیکھا تھا، لہٰذا اسے پورا یقین تھا کہ میں ہی اس کمرے میں ہوں۔ اس نے اس کمرے کے دروازوں کو باہر سے بند کیا ہوگا اور ایک ٹائم بم میں بلاسٹنگ کا وقت مقرر کر کے وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر دل ہی دل میں بولا، واہ ہری عورت، میں تجھے مظلوم اور وفادار سمجھ کر تیری ہلاکت پر افسوس کر رہا تھا اور تو ہے کہ میری ہلاکت کا سامان کر چکی تھی۔ بے شک حمزہ چٹان ہے، کسی کی ہلاکت پر رنجیدہ نہیں ہوتا، ہلاک کرنے والوں کے اندر گھس کر ان کے ارادے معلوم کرتا ہے۔ مجھے کئی بار محبت اور غصے سے سمجھا چکا ہے کہ کسی ایک رشتے کے لیے جذباتی نہ بنو۔ اگر ایک بہن یا ایک محبوبہ ہلاک ہوتی ہے تو ہمارے منہ پر ایک بار جوتا پڑتا ہے۔ عزم کرو کہ دوسروں کی بہنیں اور دوسروں کی محبوبائیں ہلاک نہ ہوں اور بار بار ہمارے منہ پر جوتے نہ پڑیں۔ وہ سوچنے کے دوران میں سامنے دور تک لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور حمزہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ وہاں آ چکا تھا اور دور کھڑا مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ کر راجہ کو پہچاننا چاہتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ صرف ایک شخص کی خاموشی اور سوچتی ہوئی نظروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہی راجہ نواز ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر تھکے ہوئے انداز میں بڑبڑایا،
दुनिया बदल जाती है। राजा नवाज ने चौंक कर उसे देखा, फिर खुश होकर मुसाफा करते हुए बोला, दीन नहीं बदलता। हमजा ने कहा, खूब भेस बदला है, दाढ़ी मूछें हल्की हैं मगर असली हैं। राजा ने कहा, मैंने 4 दिनों से शेव नहीं किया है, दाढ़ी और मूछों को सलीके से तराश लिया है, बालों का रंग और आंखों के लेंस तब्दील किए हैं, मगर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? हमजा ने कहा, हाँ, मुख्तसर सी सर्जरी करवाई है। राजा ने पूछा, आज का अखबार पढ़ा है? हमजा बोला, हाँ। तुम फौत हो चुके हो? इस झूठी खबर से तुम्हें फायदा पहुंचेगा। हमारे मुखालिफिन तुम्हें मुर्दा समझकर सिर्फ मुझे तलाश कर रहे होंगे। राजा ने कहा, खुफिया हाथ हमें शहमात दे रहा है, हमारे अहम जराए और हमारी जाती आर्मी रखने वाले तरीक़ाकार को हमसे छीन चुका है। तुम ये बताओ, हम अभी किस मकाम पर खड़े हैं? हमजा ने कहा, हम बेजारों मददगार खड़े हैं, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा है। राजा ने कहा, इस हद तक मैं समझ रहा हूँ, मगर यार तुम फौज में कैप्टन रह चुके हो, जंग हारते हारते जीतने के कई तरीके जानते हो। हमजा ने कहा, जराए हों, इख्तियारात हों, वसाइल हों तो हारने वाली जंग जीती जा सकती है। राजा बोला, तुम ऐसी मायूसी से कह रहे हो जैसे वाकई हार मानकर रायविंड में गोशा नशीनी इख्तियार करके तस्बीह पढ़ने आए हो। वो मुस्कुरा कर बोला, हमारे दीन में उलमाए कराम और दानिश्वरों को गोशा नशीनी की इजाजत है, वरना तमाम उम्र दीन और ईमान के लिए जिहाद करना लाजमी है। हम हार मानकर ईमान और सच्चाई के लिए जिहाद तर्क नहीं करेंगे। राजा ने कहा, हाँ, हम जिद्दी हैं, मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। इनकी पहली कोशिश ये होगी कि मेरी तरह तुम्हें भी ढूंढ कर हलाक कर दिया जाए, या तुम्हें इस कदर मजबूर कर दिया जाए और अपने ही मुल्क की जमीन तुम्हारे लिए इतनी तंग कर दी जाए कि तुम ये मुल्क छोड़कर भाग जाने और दूसरे किसी मुल्क में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो जाओ। हमजा सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। राजा ने कहा, मेरी समझ में ये आता है कि 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 4000 मुहिब्बान वतन और पहले की तरह हमारे जांबाज हों तो हमारी जिद्दोजहद में पहले से ज्यादा शिद्दत पैदा हो जाएगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है, मेरा ख्वाब है या फिर खुशफहमी है कि हमें अपने ही मुल्क में पहले की तरह जांबाज मिल सकेंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। बड़े दुख की बात है कि पूरी कौम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, मगर आधी से भी आधी कौम पाकिस्तान की सलामती के लिए अमली इक़दामात नहीं करती। हमजा ने कहा, हमारे मुल्क में गुर्बत और महंगाई बहुत है। इस गुर्बत और महंगाई से लड़ते लड़ते अवाम के दिन रात गुजर जाते हैं, इसलिए वो करप्ट सियासतदानों से लड़ने का वक्त नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, जब उन्हें लड़ने का वक्त नहीं मिलता है तो वो मुजरिम सियासतदानों को वोट देने का वक्त कहां से निकालते हैं। अगर गुर्बत और महंगाई ज्यादा है तो फिल्म का एक शो फैमिली के साथ देखने में कम से कम सैकड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर शो फुल हाउस होता है। माह रमजान शुरू होते ही महंगाई डबल हो जाती है, उसके बावजूद बाजारों में खरीदारों का हुजूम रहता है। एक बकरा 50,000 से 1 लाख तक खरीदा जाता है। 14 अगस्त पर लाखों करोड़ों रुपए के पाकिस्तान के झंडे और दीगर अशिया फरोख्त होती हैं और पूरा पाकिस्तान इसको मनाने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करता है। बेशक त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को गिरवी रख कर मनाना सरासर पागलपन है। मगर हम अभी उठकर बुलंद आवाज में सबको मुखातिब करेंगे कि ऐ लोगो, तुम सब एबनॉर्मल हो। जिस माँ के आंचल से आंसू पोंछते हो उसी माँ को खुफिया हाथ के पास गिरवी रख देते हो। क्या बात है तुम्हारी, रोते भी जाते हो, गाते भी जाते हो। वो दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे, सामने बेशुमार लोगों को आते जाते देखते रहे। फिर हमजा ने कहा, हम भी इंसान हैं, हम भी अच्छे और बुरे हालात से मुतासिर होते हैं। मौजूदा हालात में हम लाशऊरी तौर पर परेशान हैं, शायद इसीलिए अपने मुल्क के बुजुर्गों और भाइयों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि हमें अपने आमाल के मुताल्लिक समझना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और आइंदा हमें क्या करना है। कौम का हर फर्द अपने अमल का जिम्मेदार है। हम दोनों अकेले ही सही, हमें अपनी जिम्मेदारियां किसी भी तरह पूरी करनी होंगी। उसने जेब से एक मोबाइल फोन निकाला। राजा ने पूछा, तुमने अब तक फोन रखा हुआ है? और मैं अपना फेंक चुका हूँ। वो बोला, मैंने अपना फोन फेंक दिया है। ये दूसरा है, हमारी बहन आबी लाहौर में तन्हा है, कल से मैंने उसकी खैरियत मालूम नहीं की। उसने राब्ता करने के बाद कहा, हेलो आबी, मैं तुम्हारा भाई हमजा बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? आबी ने कहा, आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। मैंने आर्जी तौर पर वो कोठी छोड़ दी है और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आ गई हूँ। हमजा ने पूछा, फरमान की कोई खबर है? वो बोली, हाशिम अंकल ने बताया है वो खैरियत से हैं। हमजा भाई, आपसे अंकल कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज उनसे राब्ता करें। मैं उनका ज़ाती फोन नंबर बता रही हूँ। हमजा ने एक कलम से अपनी हथेली पर नंबर्स लिखे, फिर उससे चंद बातें करके फोन बंद कर दिया। राजा ने उसकी हथेली को देखकर पूछा, ये किसके नंबर हैं? हमजा ने कहा, अंडरग्राउंड माफिया के गॉडफादर हाशिम से डायरेक्ट राब्ता करने के नंबर हैं। आबी ने इल्तिजा की है कि मैं हाशिम से बात करूं। राजा ने कहा, हम मुजरिमों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, क्या तुम उससे बात करोगे? हमजा ने कहा, यही सोच रहा हूँ। वो सिर्फ एक मुजरिम नहीं है, लेडी सर्जन आमना का भाई और हमारे साथी फरमान का मामू भी है। इन अहम रिश्तों के हवाले से बात करनी चाहिए। राजा ने कहा, बाजी आमना का किरदार अजीब है। वो खतरनाक मुजरिमों का इलाज करती हैं, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से खुद
मुजरिमा नहीं है, बड़ी बासलाहियत और अजीम खातून है। कानून के मुहाफिज भी उनके आगे बेबस हो जाते हैं। हमजा ने हाशिम से राब्ता किया, कहा मैं अमीर हमजा बोल रहा हूँ, शायद तुम मेरे उसूलों से वाकिफ हो। मैं मुजरिमों से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बाजी आमना के भाई हो, फरमान और आबी के मामू हो। अभी आबी ने इल्तिजा की है कि मैं तुमसे बात करूं। हाशिम ने कहा, शुक्रिया हमजा, तुमने आबी की बात रख ली। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी बाजी आमना को कोई मुजरिमा साबित कर सकता है? हमजा ने कहा, हरगिज नहीं। वो एक डॉक्टर हैं और अपने पेशे के तकाजे पूरे करने के लिए मुजरिमों का भी इलाज करती हैं। हाशिम ने कहा, हमजा तुम भी डॉक्टर हो। हमारे सियासतदानों ने मुल्क में जो करप्शन की बीमारियां फैलाई हैं, तुम उन बीमारियों को खत्म करने के लिए दिन रात मसरूफ रहते हो। दुनिया की कोई ताकत बाजी आमना को एक तन्हा और कमजोर औरत समझकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनकी पुश्त पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, आलमी सतह के बेहद खतरनाक मुजरिम भी उनके मुहाफिज बने रहते हैं। परसों पहले बाजी कमजोर और तन्हा थी, बड़े मसाइब से गुजर रही थी। उन्होंने एक बहुत बड़े मुश्किल ऑपरेशन के जरिए मेरी जान बचाई, तब से मैं उनका मुहाफिज हूँ। आज खुफिया हाथ तुम्हें तन्हा और कमजोर बना रहा है। अगर तुम बाजी की तरह हिकमत अमली से काम लोगे तो उस खुफिया हाथ को मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। हमजा ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि बाजी की तरह मैं भी तुमसे ताउन हासिल करूं? हाशिम ने कहा, हाँ, मगर एक भाई बनकर। बाजी मेरे साथ किसी जुर्म में कभी शरीक नहीं रही, मैं तुम्हें भी किसी जुर्म में शरीक नहीं करना चाहता। शायद तुम मेरे तरीके कार से वाकिफ नहीं हो। मैं अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शमशीर सिंह कालिया जैसे गॉडफादर कहलाने वाले स्मगलरों को मैंने कभी यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी चीजें पाकिस्तान के रास्ते ले जाने नहीं दी, बल्कि स्मगल होने वाली यूरेनियम की खासी मिकदार को अपने ही मुल्क में रोक लिया। कालिया इसलिए मेरा दुश्मन है कि मैंने उसे भारत को बहुत बड़ी एटमी कुव्वत बनाने का मौका नहीं दिया। जिस तरह बाजी मुजरिमों को नई जिंदगियां देने के बावजूद मुजरिमा नहीं है, उसी तरह मैं दूसरे ममालिक के लिए मुजरिम होने के बावजूद पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करता हूँ। हमजा ने कहा, तुम अपनी जबान से कह रहे हो कि दूसरे ममालिक के लिए मुजरिम हो, आखिर मुजरिम हो ना? हाशिम ने कहा, दुनिया के हर मुल्क का हुक्मरान दूसरे ममालिक के मुकाबले में पहले अपने मफादात को तरजीह देता है। अपनी बरतरी कायम रखने के लिए दूसरे मुल्कों में तखरीबकारी करवाना इसलिए जुर्म नहीं है कि ऐसे जराइम हुक्मरान करते हैं। क्या मोसाद, रॉ और KGB वगैरह तंजीमों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा या कोई आलमी अदालत एक्शन लेती है? हरगिज नहीं। अगर मैं अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर होने के बावजूद अपने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं करता हूँ, बल्कि मुल्क दुश्मन अनासिर के कदम यहाँ से उखाड़ता हूँ, तो तुम मुझे मुजरिम क्यों समझते हो? क्या मैंने करप्ट सियासतदानों के खिलाफ अपने भांजे फरमान को तुम्हारा मातहत नहीं बनाया? आओ आज पाकिस्तान की सलामती का एक ज़बानी मुआहिदा करें। हमजा ने पूछा, कैसा मुआहिदा? हाशिम ने कहा, तुम्हें अपनी पुश्त पर जांबाजों की एक फौज की जरूरत है। मैं फौज और हथियार दूंगा। तुम्हें दुनिया के किसी मुल्क में डॉलर्स और पाउंड्स की कमी नहीं होगी। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। फिर जिस दिन तुम हमारे मुल्क को करप्ट सियासतदानों से पाक करोगे और खुफिया हाथ का तिलिस्म तोड़ दोगे, मैं जराइम से भरपूर अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं रूपोश हो जाऊंगा। मेरी इस पेशकश पर गौर करो। अब तमाम जराए से महरूम होकर खुफिया हाथ जैसी ताकत से तन्हा जंग करोगे तो गोया जानबूझकर खुदकुशी करोगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हाशिम ने फोन बंद कर दिया। हमजा भी फोन बंद करके सोचने लगा। राजा ने पूछा, तुम उस गॉडफादर हाशिम से किसी मुआहदे की बाबत पूछ रहे थे? हमजा उसे हाशिम से होने वाली गुफ्तगू तफसील से सुनाने लगा। वो तमाम बातें सुनाकर बोला, हाशिम की बातों में सच्चाई है। खुफिया हाथ से जंग जारी रखने के लिए हमें बेहिसाब डॉलर्स और पाउंड्स की जरूरत पेश आती रहेगी। अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगाने वालों की भी जरूरत है। हाशिम अपने इस अमल से मुजरिम नहीं, मुहिब वतन साबित होता है। वो पाकिस्तान के लिए मुजरिमाना जहन रखने वालों के खिलाफ हमारा साथ दे रहा है। हमजा ने ताईद में सर हिलाकर कहा, हम यहाँ चेहरे तब्दील करके ऐसे बैठे हैं जैसे मुजरिम हो और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बेघर होकर भटक रहे हों। यहाँ मस्जिद के साए में रहकर जैसे अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिल रही है और हाशिम की सूरत में मिल रही है। उसने दोबारा हाशिम से राब्ता किया, फिर कहा, मैं तुमसे बराह रास्त मुलाकात करना और मामला तय करना चाहता हूँ। हाशिम ने कहा, मैं हाजिर हूँ, जहाँ चाहोगे तन्हा मुलाकात करने चला आऊंगा। हमजा ने कहा, लाहौर में बाजी आमना की कोठी खाली है, शाम को मुलाकात हो सकती है। हाशिम ने कहा, इस कोठी के चारों तरफ मेरे जासूस हैं। मैं अभी उन्हें हुक्म दे रहा हूँ कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही कोठी का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दें। मैं शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। हमजा ने कहा, ठीक है, मैं 5 बजे आऊंगा। खुदा हाफिज। राब्ता खत्म हो गया। हमजा और राजा को एक नया हौसला मिल गया।
दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे के हाथ को थाम लिया। नेक नियति हो तो दुश्मन एक दरवाजा बंद करता है, अल्लाह 100 दरवाजे खोल देता है। हमजा ने कहा शाम को मामला तय हो जाएंगे तो फिर मुखालिफिन पर धमाके के साथ जाहिर करेंगे कि तुम जिंदा हो। अब वो खुशियां नहीं मनाएंगे, मातम करते रहेंगे। उसने कराची के काउंसिल खाने में फोन किया, फिर कहा मिस टीना से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया आप कौन? वो बोला उसे अगवा करने वालों में से एक हलाक हो गया है, दूसरा जिंदा रह गया है, वही जिंदा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर टीना की आवाज सुनाई दी। वो नागवारी से बोली हेलो, कौन है? हमजा ने कहा तुम्हें अगवा होने का बहुत शौक है, शराफत पसंद नहीं है। तुम अपनी मर्जी से अपने तहफ्फुज के लिए राजा के साथ गई थी, लेकिन अगवा होने का इल्जाम राजा नवाज के अलावा मुझ पर भी लगाया और ये भी शर्मनाक इल्जाम लगाया कि हम 2 मर्द तुम्हें बांट कर खाना चाहते थे। वो बोली मैं समझ गई, तुम अमीर हमजा बोल रहे हो। हमजा ने कहा और मैं समझ रहा हूँ कि इन लम्हात में फोन पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। तुम मुझे लंबी बातों में उलझाओगी और ये सुराग लगाया जाएगा कि मैं किस फोन पर कहां से बोल रहा हूं, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात कह रहा हूं कि तुम्हारी अगवा होने की ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे कराची आने तक किसी फौलादी किले में छुप जाओ, उसके बावजूद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। हमजा ने फोन बंद कर दिया, फिर दूसरे नंबर पंच करने के बाद कहा हेलो, मैं अमीर हमजा बोल रहा हूँ। नेक बख्त से कहो मैं उसके सेफ की तमाम चीजें वापस करना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं काशिफ अकबर के सेफ से लाई हुई चीजें भी दूंगा। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा प्लीज होल्ड ऑन, मैं सर को आपका पैगाम दे रहा हूँ। हमजा इंतजार करने लगा। चंद मिनट के बाद सेक्रेटरी ने कहा प्लीज होल्ड ऑन, सर बाथरूम से आ रहे हैं। फिर चंद मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद नेक बख्त की आवाज सुनाई दी, हेलो हमजा साहब, मुझे अफसोस है आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। हमजा ने कहा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, फोन से टेप रिकॉर्डर मुंसलिक करने में देर हो जाती है। ये तो सब जानते हैं कि किसी पहलवान को आसाबी कमजोरी की दवाई खिलाई जाए या इंजेक्शन लगाया जाए तो वो बिल्कुल ही कमजोर और नाकारा हो जाता है। नेक बख्त ने कहा आपकी इन बातों का मतलब क्या है? हमजा ने कहा यही कि तुमने और खुफिया हाथ ने मेरे आसाब कमजोर करने, बिल्कुल नाकारा बना देने के लिए मेरे तमाम अहम जराए से महरूम कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी कमर तोड़ने के लिए मेरे बेहतरीन दोस्त राजा नवाज को हलाक करवा दिया। अब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। नेक बख्त ने हंसते हुए कहा तुम मजबूर और खिसियाने होकर बोल रहे हो। हमजा ने कहा तुमने पूरी कहावत नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। कहावत पूरी करने के लिए मैं तुम्हारा सर कड़ाही में डालने वाला हूँ। सिर्फ कल तक इंतजार करो, तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले हैं। उसने फोन बंद कर दिया। नेक बख्त की नींद उड़ाने और खुफिया हाथ को तशवीश में मुब्तला करने के लिए फिल वक्त इतना ही काफी था। उसने राजा नवाज को फोन देते हुए कहा तुम काशिफ अकबर से बात करो, जब डाकू 2 हों तो दोनों का खाना खराब करना चाहिए। वो दोनों आपस में मशवरा करने लगे कि काशिफ अकबर से किस तरह की गुफ्तगू की जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।